Assalamu alaikum. I'm back with my another topic, that is types of blood vessels. We have discussed in our last videos that about the detailed discussion of the different types of the deoxygenated blood types, composition, how they are formed, what type of cells were there, what is the function of the cells we have discussed. Now, a very important channel, you can say, are tubes, that you can say are blood vessels which provide a complete channel to the system, that is a transport system, we are saying that. Alright, kitni types है इसकी? There are three important types of the blood vessels: artery, vein and capillaries. Over here I have just written the three comparison between these blood vessels, but before understanding this topic, have a look on this diagram. ठीक है? Over here in the artery, vein and capillary, the major difference between these blood vessels, यहाँ पर कुछ layerings present है, or we can say the muscles or the muscular layer is present. ठीक है? First जो हम कह रहे हैं यहाँ पर tunica externa, or you can say another name is adventitia, right? Tunica externa, which is the external layer of this artery. Now in between, you can say the tunica interna, which is internally present, and in between these two layers is tunica media is present. तो आप भी कह सकते हैं कि जो tunica media है, it's providing a medium between the interna and externa. ठीक है? Different books में different names मिलते हैं. Externa को हम adventitia भी कह रहे होते हैं. और अच्छा, over here you can see, just have a look on this diagram. यहाँ पर जो tunica media है, as compared to the vein diagram, यहाँ पर भी तीन ही layers present है, tunica externa, tunica media and tunica interna, right? But the major difference between the artery and vein is that they have a wide lumen. मैंने last class में discuss भी किया था in my previous videos कि what is lumen? A hollow space that allow the movement of the molecules, or you can say just flow of material takes place in this lumen, a empty space, a hollow space. ठीक है? अगर आपको यहाँ पे comparison करना है artery और vein का, दोनों में layers present है, complete three layers, tunica externa, tunica interna and tunica media. But the major difference is यहाँ पर narrow lumen present है as compared to the vein, जहाँ पर wide lumen present है. इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे वाइडर क्यों है और यहाँ पर नैरो ल्यूमेन क्यों है. नाउ हैव अ लुक ऑन दिस कैपिलरी स्ट्रक्चर. ठीक है? यहाँ पर कोई और लेयर प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट है, विच वी आर सेइंग सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम, और जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना, राइट? ट्यूनिका इंटरना यहाँ पर क्या है, एक ही लेयर प्रेजेंट है. इसका भी हम रीज़न डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक लेयर क्यों प्रेजेंट है. एंड येस, अगेन यहाँ पर एक ल्यूमेन है, एक हॉलो स्पेस है जो अलाउ करेगा मटेरियल टू पास. नाउ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी. फर्स्ट डेफिनेशन डिफरेंस यू कैन से कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी में तीनों का काम सेम है, ब्लड वेसल है, ब्लड को फ्लो करवा रहे हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर तो हमने ल्यूमेन का डिस्कस कर चुके हैं और हमने स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पे लेयर्स को भी हमने डिस्कस किया है. फंक्शन की बात की जाए तो आर्टरी का मेन फंक्शन क्या है? दैट इट ऑलवेज टेक्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द सिस्टम और टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. ये डेफिनेशन आपको हर बुक में मिलेगी. ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है, दैट द ब्लड वेसल विच टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, जिसमें हर ब्लड वेसल्स आ जाएगी. यहाँ पर आपको एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ करने की नीड नहीं है. ओके? सो आर्टरी की डेफिनेशन क्या थी? सिंपल, द ब्लड वेसल्स विच टेक्स द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और द अनदर डेफिनेशन इज इट इज़ द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, और यू कैन से टू द सिस्टम. नाउ व्हाट अबाउट द वेन? इट्स completely opposite of the artery. Vein take the deoxygenated blood or the impure blood from the system to the heart, except pulmonary vein. यहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है कि यहाँ पर पल्मोनरी वेन के अलावा सारी वेन्स ऐसी हैं जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। और अनदर डेफिनेशन, इट इज द ब्लड वेसल विच टेक्स द ब्लड टू द हार्ट, away from heart to the heart. I hope that you have understand this concept. What about capillary? Capillary में कोई oxygenated blood या deoxygenated blood का कोई concept नहीं है. It's just a bridge between artery and vein. But how? Capillary take the oxygenated blood from the artery, ओके, एंड गिव इट टू द टिश्यू. उसका मेन जो इंटरैक्शन है वो टिश्यूज के साथ है, डायरेक्ट टिश्यू लेवल पे वो जा रहा है. नाउ फ्रॉम द टिश्यू इट टेक्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गिव इट टू द वेन, एंड देन वेन टेक दिस ब्लड, गिव इट टू हार्ट फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पस. ठीक है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों का आपस में ब्रिज बनाने के लिए हम कैपिलरी ब्लड वेसल्स को इस तरह से याद कर सकते हैं. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस, आर्टरी हैज अ हाई प्रेशर, वेन हैज अ लो प्रेशर, जबकि कैपिलरी में लो ही होता है प्रेशर. ऑल राइट, वाई एम सेइंग हाई प्रेशर? द रीजन इज एरिया इज वेरी लो. हम कहते हैं ना फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू T अपॉन A. इट मीन्स हाई फोर्स, सो हाई प्रेशर, बट इट शुड बी हैविंग अ लो और यू कैन से लेस एरिया ओवर देयर. ठीक है, यहाँ पर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रही है आर्टरीज में. ल्यूमेन छोटा है, साइज छोटा है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ हाई प्रेशर बिकॉज ऑफ द नैरो ल्यूमेन. अगेन वेन का क्या है? लो प्रेशर बिकॉज ऑफ द वाइड ल्यूमेन. व्हाट अबाउट द कैपिलरी? एक्सट्रीमली नैरो. क्यों हम बात कर रहे हैं एक्सट्रीम नैरो की? यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा नहीं होता. ठीक है, अच्छा, इसका रीज़न क्या है? वाई एक्सट्रीम नैरो? बिकॉज इट हैज़ टू टेक द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी टू गिव इट टू द टिश्यूज. टिश्यू लेवल तक जाना है. टिश्यू इज़ अ वेरी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर और टिश्यू से वो सेल तक जा रहा है. तो यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि इसको बिल्कुल सेल लेवल तक जाना है, तो ऑब्वियस इसका जब ल्यूमेन बहुत छोटा होगा तभी वो उसको ब्लड ट्रांसफर कर सकता है. थर्ड डिफरेंस, इट हैज़ थिक वॉल, हम डिस्कस कर चुके हैं. थिन वॉल एंड एक्सट्रीमली थिन, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियम प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना. राइट, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको. हाई मसल फाइबर एंड इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक नेचर का होगा. तो रीज़न क्या है? जितना इलास्टिक होगा, जितना फिब्रस होगा, ऑब्वियसली इट कैन अप्लाई मोर प्रेशर, मोर फोर्स, क्योंकि उसको क्या करना है? इट हैज़ टू टेक द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द सिस्टम. उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना है, तो ऑब्वियसली इट नीड्स अ ग्रेट प्रेशर. और जब प्रेशर तभी होगा कि जब यहाँ पर उसका ल्यूमेन के साइज छोटा होगा. इट शुड बी नैरोवर. स्मॉल मसल फाइबर्स एंड इलास्टिक, इतना ज़्यादा इसमें इलास्टिक वो जो है इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होती है. बहुत से कम इसके जो है मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ प्रेशर ओवर हियर. यहाँ पर कोई प्रेशर की बात नहीं है. यहाँ पर हम कोई बात नहीं करेंगे मसल फाइबर्स की इलास्टिक, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसको क्या करना है? इसका साइज सिर्फ आपको याद रखना है कि यहाँ पर शुड बी एक्सट्रीमली थिन वेसल्स या थिन ल्यूमेन होना चाहिए, सो दैट इट कैन ईजिली ट्रांसफर टू द टिश्यूज. उसको कोई प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, कोई थिक वॉल की ज़रूरत नहीं है, और ना ही एज सच कोई इसको जो है वो इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हाउ वी कैन कंपेयर दिस थ्री ब्लड वेसल्स. लास्ट, नो वॉल्व इज प्रेजेंट. ठीक है, कोई वॉल्व नहीं है. मैं बताती चलूँ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व. क्यों होती है वॉल्व? टू जस्ट प्रिवेंट द बैक फ्लो. ठीक है, अगर मैं आर्चरी की बात को यहाँ पर वॉल्व की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? बिकॉज यहाँ पर होता ही प्योर ब्लड है. अगर बैक फ्लो हो भी जाए तो कोई ऐसा बॉडी को हार्म नहीं करेगा. But when we're talking about the vein, obviously it has deoxygenated blood, that is a impure blood. तो यहाँ पर valve का होना बहुत ज़रूरी है. और yes, it has valve so that it can prevent the back flow. ताकि अगर वो back flow से prevent करता है, obviously it has a impure blood. और यहाँ पर कोई valve नहीं होती. Obviously capillary का काम ही क्या है? Blood take करना है from the artery and give it to the tissues, then from tissues to the vein. Okay? This is the interaction between the artery, capillary and vein. Okay, we have discussed this thing that artery that connect take the oxygenated blood from the heart and give it to capillaries. It will not directly given to the tissues. Okay, तो यहाँ हम डिस्कस कर चुके थे. पर आर्टरी से यहाँ पर थोड़े और फाइन स्ट्रक्चर में आएगा, आर्ट्रियोल्स बन जाएंगे. आर्ट्रियोल्स क्या करेंगे? कैपिलरी को देंगे ब्लड, एंड कैपिलरी, दिस इज द कनेक्शन, अ नेटवर्किंग which have a very fine narrow lumen over here,
और फिर कैपिलरी टिश्यूज़ को देगा, यहाँ पे सेंटर में टिश्यूज़ होंगे, यहाँ से ब्लड क्या होगा, डिफ्यूज़ होगा, और फिर यहाँ से जो डीऑक्सीजेटेड ब्लड है वो जाएगा विनियोल के पास, और विनियोल जो है वो वेन्स को देगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स, के हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर अडेप्टेड टू दिस स्ट्रक्चर, किस तरह से काम कर रहे हैं, किसको कौन ब्लड इनटेक कर रहा है और किसको दे रहा है। I hope that you have understand this concept. Inshallah, another video we are going to discuss in detail about the heart structure. So stay with me. Thank you. Allah Hafiz.